All my dear students, submit volume. As you know that Navodaya Vidyalaya Samiti is not only restricted to the academic excellence, but along with that, it works for the overall development of the students, to develop values, to develop good habits, and to develop them in such a way, with the help of that, they will behave as a good and concerned citizen of the country as well as the global citizen. Keeping it in concern, Samiti is being initiated different campaigns, different movements, different sorts of learning and teaching for students. In this scheme, we are fortunate enough today that we have Sri Jagannath Das. Sir is here with us. He doesn't need any introduction, but very important and remarkable introduction about Sir. He is Navodayan. He has pursued his schooling from Jawahar Navodaya Vidyalaya, Bhusawal district, Jalgaon. Since 1993 to 1998, and in class 10, he was a topper, class topper. Later, in grade 12, divisional topper. After that, he had done BTech from Vijay AI Institute, Mumbai. After that, he started his professional career, and for initial 8 years, he had served as a lecturer in engineering college in Mumbai as well as in Pune. But somewhere he realized that life is something different beyond all these professional things. And with that feeling, with that sensation, he joined ISKCON in the year 2012, and since then, he has been serving for that. Where he is called as Brahmachari, and his job is to visit different educational institutes and firms, wherein he guides students about life skills, about their behavior, and his guidance helps students to come out from the orders and difficulties they undergo. According to him, challenges are only and only for human, but we must learn to regulate and to face these challenges. Till date, he has already visited 172 Jawahar Navodaya Vidyalayas in 18 different states. Yesterday only, the Jacob sir told me that he was there in Kerala also, and today he is with us. Now I request our senior most teacher, Sri Rajesh Yelne, to present a bouquet to sir and welcome him on the behalf of Jawahar Navodaya Vidyalaya Bhandara. Samit, ये volume सही करो ना तो पहले आता है. Thank you. Yes. Wow. Yes. Yes. We welcome you, sir. Now, please. First of all, I thank our dear Kelne sir, principal ma'am, who gave me permission and allowed me to come here. All teachers to give me the kind shelter and the opportunity to serve here at JNV Bhandara. I feel so happy to be with you today morning here. I wish you all a good morning. So, for me, it's not new thing seeing the Navodaya campus or knowing the systems of Navodaya. I know all the things. And all over India, I have gone now in last 3 years. So, I know something about our systems. And the most important guideline which Samiti gives us from the beginning
motivation, you can say, is learning for serving. All the Navodaya gates, we find the simple words: come to learn, go to serve. It was easy for them to say, come to learn and then go to earn. It was easy to say. Even the space will be less on the wall. Na? So big, sir, five letters, 5 alphabets. And then here only earn, na? 4 letters. But you know, simply earning will not make you happy. Earning is a small part of life. Beyond earning, we need satisfaction, joy, contentment, fulfillment of our heart's life. And that is possible only if we do some service contribution for the society. Why? We take so much from society. We are bound to give back something in return. Otherwise, all those things we have taken from society becomes a burden, a loan on our heads. In taking, we feel happy, but we'll be more happy if we start giving also back to the society. It's a law of the nature. What is the law of nature? To each action, there is always equal opposite reaction. If we have taken so much from society, and if we don't give back as a reaction, service, then that reaction will be pending on your life. Unless you give back, you won't be happy in life. So I have understood this one thing, that the best motivation, not the school life, but whole life, can be learning for serving. In that, earning will happen automatically, without any burden. बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमें पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हमें फोकस नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं होती है, डिस्ट्रैक्शंस होती है. ऐसा कुछ होता है बच्चों के साथ यहाँ पे? ऐसा कुछ समस्या होती है? पढ़ना चाहते हैं, मन नहीं लगता है, मन यहाँ वहाँ भटकता है, या होता है? नहीं होता है. भंडार के बच्चे बड़े शांत है एकदम, महान है, कि जिनका कोई मुनि है, योगी है, जिनका कोई मन भटकता नहीं है. ये सबकी समस्या है. दुनिया में सब जगह ये समस्या है कि लोग जो है अशांत होते हैं या बहुत डिस्टर्ब होते हैं. कहीं ना कहीं अपनी जो मानसिकता होती है वो ठीक नहीं होती है, इसलिए ये समस्या होती है. नहीं तो मन तो अपना ही है, अपने पास ही है, अपने हिसाब से चल सकता है. लेकिन हमें कुछ बेसिक ज्ञान नहीं है. क्या ज्ञान नहीं है? कि सुख कहाँ है, समाधान कहाँ है, आनंद कहाँ है. यदि हमें पता नहीं है, हम गलत जगह ढूंढते हैं, तो मन को तो शांति और सुख मिलेगा नहीं, और मन और भटकता है. गलत जगह पे सुख नहीं मिलेगा, सही जगह पे मिलेगा. और हम कैसे जान सकते हैं कि वास्तविक सुख जो हम चाहते हैं, समाधान चाहते हैं, वो कहाँ पे है? लगता तो है बॉडी में बहुत सुख है, बॉडी विल गिव प्लेजर, ऐसा लगता है. ये शरीर जो है ये सुख का साधन है, लोग सोचते हैं शरीर हमें सुख देगा, ऐसा लगता है. ये बड़ा भ्रम है. ये शरीर कभी किसी को सुख नहीं देता है. जो हम सुख समझते हैं वो 2 पल का नहीं है. हमें जो चाहिए सुख, वो चाहिए नित्य सुख. हम चाहते तो हैं, क्या चाहते हैं? कि जो सुख टिकता है लंबे समय तक, वो हम चाहते हैं. 2 पल की खुशी नहीं चाहते हैं, क्योंकि 2 पल की खुशी बाद में दुख में बदल जाती है. कि वो अभी खुशी नहीं बोलकर हम दुखी हो जाते हैं. यदि हम जानेंगे कि वास्तविक सुख भी जो है दुनिया की चीज़ों में नहीं है, वो अपनी आवश्यकता हो सकती है. गाड़ी चाहिए, कोई घर चाहिए, बंगला चाहिए, वो ठीक है, अपनी आवश्यकता हो सकती है. लेकिन ये बोलना कि केवल गाड़ी मुझे सुख देगा, केवल बॉडी मुझे सुख देगा, केवल मुझे दुनिया की चीज़ें जो हैं, मशीन, व्हीकल्स, वो सुख देगा, बंगला जो भी सुविधा है, ये भ्रम है. क्यों? सुख कहीं बाहर नहीं होता है, सुख अपने पास ही होता है. सुख अपना स्वभाव ही है, बॉडी का नहीं है. हम जो है उसका स्वभाव है.
बहुत समय आज के समाज में लोग अपनी पहचान को समझ नहीं पाते हैं। अपनी पहचान वो नहीं है जो बदलता जाता है, अपनी पहचान वो है जो बदलता नहीं है। ऐसा क्या चीज़ है जो बदलता नहीं है? अपना शरीर जन्म से लेकर अब तक हमेशा बदलते आया है। आप समझते इस बात को? आपका जब जन्म हुआ था, आज किसी का बर्थडे भी है, क्या नाम उसका जिसका बर्थडे है? हाँ, क्या नाम है? भाभी। हाँ, भाभी का बर्थडे है आज। लोग भूल जाते हैं कि हमने कभी जन्म भी लिया था और सोचते हैं अभी हम दुनिया में हमेशा रहेंगे, सेटल हो जाएंगे दुनिया में। ये भूल जाते हैं कि हम दुनिया में पहले से नहीं थे, हम जन्म के साथ आए हैं और एक दिन आए हैं तो फिर जाना भी होगा। लोग दुनिया में केवल आते तो है इच्छा से, कोई जाना नहीं चाहते यहाँ से। बड़ी समस्या है। आप लोग स्कूल में आए या पहले से हैं टाई पहन के? बोलो बच्चों, बड़े बच्चों, आप लोग स्कूल में पहले से हैं या आए हैं? आए हैं। अब मुझे बताइए, आप जाना चाहोगे वापस या नहीं, यहीं रहना चाहोगे? हाँ, जाना चाहेंगे। कितनी बार बच्चे प्लान बनाते हैं, लीव पे जाऊंगा, हाँ 2 दिन का छुट्टी ले लूँगा। और आप लोग कहाँ जाते हो? जहाँ से आए हो। लेकिन यदि आप में से कोई बच्चा भूल जाए कि मैं कहाँ से आया हूँ, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। ऐसा कभी होता है किसी का कोई हादसे में कोई चोट लग जाती है, दिमाग को मार, है ना, कोई जो अपना दिमाग है उसको कोई मार लग जाता है, तो फिर वो अपनी स्मृति, मेमोरी भूल जाता है, मेमोरी खो देता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, याददाश्त खो देता है। तब वो मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे मेरा माँ बाप कौन है, गांव क्या है, सब भूल जाता है। तो ऐसी चीज़ में, ऐसी समस्या में जब सब बच्चे अपना बैग उठा के वेकेशन में जाएंगे, तो ये लड़का जो है बड़ा चिंतित हो जाएगा कि मैं कहाँ जाऊँ। सबको पूछेगा आप कहाँ जा रहे, कहाँ? सब बच्चे बोलेंगे आप अपने गाँव जा रहे हैं। ये बच्चा समझ नहीं पाएगा मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि उसको याद नहीं आ रहा। उसके पिताजी आ जाएंगे लेंगे, बेटा चलो गांव चलते हैं, अपने गांव। आप कौन हैं? यदि बच्चा अपने माँ बाप को बोले कि आप कौन हैं, तो बड़ी समस्या हो जाएगी। वो अपने बच्चे को ले भी जाएंगे तो उसका मन वहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी याददाश्त चली गई है। ये बड़ी समस्या। ऐसा होता है जीवन में, कभी दुनिया में हुआ है, ऐसा होता है। जिसकी याददाश्त चली गई वो फिर बड़ा चिंतित हो जाता है, उसका जीवन बड़ा दुखी हो जाता है। आप बोलेंगे किसकी कथा है सर? ये सब कथा हम सबकी है, हम सबकी है। हमें तो याद है सर, हम कौन से गांव से आए हैं। स्कूल की बात में आप जानते हैं कहाँ से आए हैं। जीवन के विषय में यदि मैं बोलूँ, दुनिया के विषय में, जो हम जन्म के साथ यहाँ पे आए हैं, पहले से नहीं थे, हम कहाँ से आए हैं, ये भी तो एक सवाल बन सकता है जीवन में। नहीं बन सकता? नहीं सर, ये कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न की कोई आवश्यकता नहीं है कि हम कहाँ से आए हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, कौन से भी स्कूल में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, पहला सवाल मुझे बहुत लोग पूछते हैं, सर आप कहाँ से आए सर? ये भी पूछ देते हैं, आप आगे कहाँ जाएंगे सर, ये भी पूछ देते हैं। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है। जो 2 लोग कहीं भी मिलते हैं पहली बार, तो ये 2 सवाल तो कॉमन क्वेश्चन होते हैं। आप कहाँ से आए हो सर, और आप कहाँ जाएंगे। और कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कितना दिन का प्लान है सर यहाँ पे कितना दिन का प्लान है, ये भी पूछ लेते हैं। यदि हम ये सवाल अपने जीवन के विषय में करेंगे तो बड़ा अपनी बुद्धि को चालना मिल सकता है। बुद्धि अपनी जग सकती है जो सोई हुई है। देखिए, अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छे सुखी आसान जीवन के लिए अपनी बुद्धि को जगाना आवश्यक है। बुद्धू बन के बुद्धि को सुला के हमें कुछ लाभ नहीं मिलने वाला है। बहुत बच्चे की पढ़ते रहते हैं और बोलते हैं याद नहीं रहता है सर, मन नहीं लगता, समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों? बुद्धि तो है लेकिन सोई हुई है। हमने अनुभव किया, हमें विश्वास है। यदि मन शांत है और बुद्धि जगी हुई है तो
8 दिन में 8 दिन में कोई भी किताब पढ़ सकते हैं, कोई भी विषय को समझ सकते हैं 8 दिन में। यदि मन शांत है, बुद्धि जगी हुई है, बुद्धि तेज बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि है, तो हो सकता है। आज की समस्या यह है कि मन शांत है ही नहीं। फोकस, कंसंट्रेशन एक जगह पे, एक निश्चय, एक संकल्प लेके हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम डिस्टर्ब हो गए हैं। तो क्यों? सुख की खोज में। सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? ये जो चपल सुख होता है, चपल सुख मतलब फ्लिकरिंग हैप्पीनेस, मोमेंटरी है ना, कि जो ऐसे कुछ क्षणिक सुख होता है, उसके चक्कर में अपनी बुद्धि जो है भटक गई है, एक जगह स्थिर नहीं है बुद्धि। तो मैं जो सवाल पूछा था, जो सवाल मैंने रखे थे कि हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, और हम यहाँ पे कितना समय के लिए है दुनिया में, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जीवन के लिए। यदि हमें जगना है, विवेक अपना जगाना है, तो ये बेसिक प्रश्न है। पशु, पंछी, कीड़े, जो दुनिया बाकी लाखों जो प्रकार के जीव है, ये सवाल कभी पूछ नहीं सकते। वो केवल जीते हैं, शरीर के लिए जीते हैं। पशु पंछी जो होते हैं अपने शरीर के लिए जीते हैं। वो सोचते हैं जो शरीर है वो मैं हूँ। कुत्ता, गधा सोचता है जो बॉडी उसको मिला है गधे का, कुत्ते का, वो है। ये समझ नहीं पाता कि ये शरीर तो थोड़े समय की बात है, मैं कुछ अलग हूँ। वो कुत्ता, गधा समझ नहीं पाता है। मनुष्य समझ सकते हैं। क्यों? मनुष्य को विशेष बुद्धि भगवान देते हैं, जिससे हम समझते हैं कि अपनी पहचान न बदलने वाली है। बदलता क्या है? शरीर हमेशा बदलता है। आपको इसका अनुभव है, आपको इसका क्या? जबकि शरीर हमेशा बदलते आया है, आपका मन हमेशा बदलता रहता है, बुद्धि भी कभी चलती है, कभी नहीं चलती है, कम ज़्यादा होती रहती है। लेकिन हम जो एक व्यक्ति है वो कभी बदलता नहीं है। ये तो हमें अनुभव है। इसमें कोई ऐसा ह्यूमन रिसर्च, कोई ऐसा बड़ा कोई खोज की आवश्यकता नहीं, कॉमन सेंस की आवश्यकता है बस। कोई ऐसी कल्पना, अंधश्रद्धा का विषय नहीं है। जिसको कॉमन सेंस वो समझता है कि ये सब बदलती दुनिया में, बदलते शरीर में, बदलते मन और बुद्धि के साथ मैं जो हूँ एक व्यक्ति, वो नहीं बदलता। उसे हम बोलते हैं जीव, बोलते हैं जीव। अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? जीव। और जीव ही जीवन का आधार होता है, ये हमें समझना चाहिए। जीव ही जीवन का आधार और कारण होता है। जीव, जहाँ जीव नहीं वहाँ जीवन नहीं होता है। अब देखिए, बॉडी में तो डेड बॉडी जो होती है, डेड बॉडी किसी का, वो भी एक बॉडी होती है, उसमें सभी पार्ट्स होते हैं बॉडी, डेड बॉडी में। लेकिन हम समझते हैं दादाजी हमारे छोड़ के चले गए हैं, ऐसा बोलते सब लोग। दादाजी छोड़ के चले गए, दादी छोड़ के चली गई, ऐसे बोलते हैं। उनकी बॉडी सामने होती है सबके सामने, ऐसा क्यों बोलते हैं? दादी सोई है, उसको उठा, नहीं, दादी नहीं है, दादी की डेड बॉडी है। दादी चली गई हमारी, कहाँ चली गई? बोल के भी नहीं गई कहाँ जा रही है। तो हमें समझ में आता है, हम जिसको दादी बोलते थे वो तो हमने देखा ही नहीं कभी। हम तो बॉडी देखते थे हमेशा। हमने हमेशा बॉडी देखा दादी का, दादी को कभी देखा नहीं, क्योंकि जब दादी चली गई छोड़ के बॉडी, तो हम बोल ही रहे हैं दादी हमको छोड़ के चली गई, दादी हमको छोड़ के चली गई। देखो, हम सोचते हैं जो बॉडी है वो एक व्यक्ति है। ये बड़ा अपना भ्रम है। बच्चे आईने में देखते सोचते हैं मेरा नाक ऐसा है, मेरा बाल ऐसा है, मेरा कलर ऐसा है, मैं ठीक नहीं, मेरा बॉडी ठीक नहीं, ऐसा सोचते। वो हम नहीं है। बॉडी अपनी गाड़ी है। जो बोलते कभी गाना, जिंदगी, क्या बोलते बच्चे? जिंदगी, आगे का बोल दो, यहाँ कल क्या होगा। हाँ, ये समझना है। हम बचपन से गाना कभी सुने हैं तो मुझे ये समझ में आया कि यस, जीवन एक सुंदर प्रवास है, यात्रा है, सफ़र है। इस यात्रा में शरीर हमें जो मिला है ये अपना वाहन है, हम नहीं है। और दुनिया का स्वभाव भी हमें समझ में आता है।
यहाँ कल क्या होगा किसने जान। वो लोग जो अहमदाबाद के प्लेन में बैठे थे उनको लगा था हम लंदन जाएंगे कल, लेकिन दुर्घटना ऐसी हुई वो प्लेन लंदन तो गया नहीं, वो हॉस्टल में गया, MBBS कॉलेज के मेस हॉस्टल में गया। वो बड़ी दुर्घटना हो गई। ऐसी घटनाएं दुनिया में हमेशा कहीं ना कहीं होती रहती है। कहीं भूकंप हो जाता है, कहीं बादल फट जाते हैं, कहीं बाढ़ आती है, कहीं रेल के एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, कहीं है ना रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, किसी को बॉडी का कोई समस्या हो जाता है। तो हमें समझना चाहिए इस बॉडी के लिए हमेशा कोई ना कोई धोखा इस जगत में है। ये बॉडी थोड़े समय का गाड़ी है, हम जो है इस गाड़ी में बैठे हुए कौन है, सवारी है, पैसेंजर हैं। ये समझना चाहिए। अपनी डिस्ट्रैक्शंस, अपनी प्रॉब्लम्स बॉडी की वजह से होती है। हम सोचते हैं ओ मेरा बॉडी ऐसा है, मेरा बॉडी ऐसा है, या मुझे बॉडी से सुख मिलेगा, बॉडी से सुख लेना है। लोग कभी आज कल का स्वभाव ऐसा हो गया है, लोग सोचते हैं जीवन का उद्देश्य क्या है, खाओ पियो मजा करो, ऐसा लोग सोचते हैं। कितना खाएगा आदमी, उसका लिमिट है। कितना मजा लेगा बॉडी का, उसका लिमिट है। लेकिन हम सुख चाहते हैं, मैं जो बताया, नित्य सुख चाहते हैं, अनंत सुख चाहते हैं, अनलिमिटेड, ऑल टाइम। क्यों? यदि हम जानेंगे अपनी पहचान बदलने वाली चीज़ नहीं है, अपनी पहचान न बदलने वाली है। वो क्या है? जीव, आत्मा कहते हैं उसे। इसलिए अपने नवोदय समिति के लोगों में जो दो शब्द हैं, प्रज्ञानम, प्रज्ञानम बोलो, प्रज्ञानम बोलो हिंदी में, प्रज्ञानम ब्रह्म। आपने देखा है सब जगह होता है ना, आपकी टी-शर्ट्स में भी होता है, लोगों में क्या होता है, प्रज्ञानम। आप में से कौन जानता है इसका मतलब क्या है? किसी को पता है? ये शब्द लिए गए हैं उपनिषद से लिए गए। बोलो। सर, जो परम ज्ञानी है वही ब्रह्म है। जो परम ज्ञानी है, हाँ ज्ञान है, वही ब्रह्म है। वंडरफुल, हाँ यस, सही बताया उसने कि सबसे बड़ा ज्ञान, ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, ज्ञानम। आगे जोड़ दिया प्र, प्र मतलब सबसे महान, प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, विशेष ज्ञान, उत्तम ज्ञान, प्रज्ञानम। और ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। ये ब्रह्म ज्ञान क्या है? ये जीवन का ज्ञान है। ब्रह्म का मतलब होता है जीव, आत्मा। ब्रह्म का मतलब क्या है? जो हम हैं। वेदों में जो इस जगत का पहला विज्ञान है, वेद जो ज्ञान है, विज्ञान इस जगत का, उसमें ये शब्द आते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। कि अपनी पहचान क्या है? ये बोल सकते थे अहम देहोस्मि, देह मतलब शरीर, कि मैं देह हूँ, लेकिन ये भ्रम है, ये सत्य नहीं है। अपनी पहचान जो कभी नष्ट नहीं होता है, न बदलता है, वो है ब्रह्म, जीव, जो जीवन का आधार है। हमें समझना चाहिए, कभी कभी किसी के हाथ पाँव नहीं होते हैं, कोई अपंग होता है ना, हैंडीकैप होता है, दिव्यांग बोलते हैं, अपंग बोलते हैं। कोई व्यक्ति अंधा होता है, कोई बहरा होता है, कोई गूंगा होता है, कोई मतिमंद होता है, तब भी जीवन चलता है, जीवन होता है। ये नहीं कि बिना हाथ के जीवन कैसे चलेगा, बिना बुद्धि के जीवन। कभी कभी किसी की बुद्धि बहुत मंद होती है, नहीं होती है, तभी जीवन चलता है। लेकिन बॉडी फिट है, लेकिन बॉडी में अभी जीव नहीं है, जीव चला गया, फिर जीवन नहीं रहता है। ये समझना चाहिए। अपनी पहचान जब तक समझेंगे नहीं, तब तक मन शांति नहीं होगी, बुद्धि नहीं जगेगी। ओके, अंतिम 10 मिनट है, ध्यान दीजिए। जब हम समझेंगे कि जो शरीर में जीव है, आत्मा जिसे हम कहते हैं, जो भगवान का अंश है। अब मैं भगवान को नहीं मानता। यदि आप भगवान को नहीं मानते, फिर आप किसको मानोगे? आप खुद को भी नहीं मानोगे। फिर कोई बोलेगा मैं अपने माँ बाप को नहीं मानता। मैं जो हूँ अपने माँ बाप से नहीं आया हूँ, मैं मशीन से आया हूँ। अपने आप कोई है ना ऐसा कंपनी से, कोई ऐसा प्रोडक्शन होता है ना, मोबाइल प्रोडक्शन, वैसा मैं कंपनी से आया हूँ, या मैं खुद अपना बॉडी बनाया हूँ। ऐसा कोई सोचेगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। आई डोंट बिलीव इन माई फादर, आई डोंट बिलीव इन माई मदर, कोई ऐसा बोलेगा वो तो पागल ही होगा। जब हम समझते हैं इस जगत में जो कुछ भी है वो कोई तो बनाता है, और वो किसी ना किसी का होता है। मैं किसी का नहीं हूँ,
मैं इंडिपेंडेंट हूँ, स्वतंत्र हूँ, ये तो पागल ही बोलेगा। क्योंकि हम समझते हैं शरीर भी जो हमें मिलता है माता पिता के माध्यम से मिलता है, लेकिन हम तो शरीर नहीं है, जो हमने चर्चा की अभी। हम तो एक जीव है जो हमेशा जीना चाहता है। आप मुझे बताइए, आप जीना चाहते हैं कि जीना चाहते हैं? आप बूढ़ा बनना चाहोगे? चाहता तो कोई नहीं बूढ़ा बनना। बूढ़ा बनना बहुत दूर की बात है। थोड़े बाल सफ़ेद हो जाए तो लोगों को टेंशन आ जाती है। लोग काला, जिंदगी में काला करते रहते हैं बाल को, केस को, है ना, जो भी अपने बाल होते हैं काला करते रहते हैं। क्यों? बुढ़ापा उनको दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, नहीं चाहते हैं कि हम बूढ़ा दिखें। क्योंकि पता है आपको क्यों ऐसा है? आत्मा कभी, हम जो जीव है आत्मा, वो कभी बूढ़ा बनता ही नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं हम ना बूढ़ा बने। आत्मा हमेशा जीती है, इसलिए हम चाहते हैं हम जिए। जबकि बॉडी के लिए पता नहीं कितना समय है इस दुनिया में, ये गाड़ी कब बंद पड़ जाएगा पता नहीं, लेकिन हम हमेशा जीते हैं आत्मा, इसलिए हमें इच्छा है। इतना हमें कॉमन सेंस होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मॉडर्न साइंस तो नहीं मानता है, मेडिकल साइंस तो कोई आत्मा को नहीं मानता है, ऐसा लोग बोलते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, लेकिन बायोलॉजी में कहीं पे भी लाइफ के विषय में कुछ नहीं है। MBBS, MD, MS कोर्स में भी हम जो सिलेबस देखे हैं, कहीं पर बुद्धि के विषय में, मन के विषय में, अहंकार के विषय में, और सबसे इम्पोर्टेंट आत्मा के विषय में, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता, उसका उल्लेख भी नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है। क्यों? ये जो सिलेबस है ये ब्रिटिश लोगों ने हमें दिया हुआ है। इस देश में ब्रिटिश आने से पहले जो शिक्षा दी जाती थी वो वैदिक साइंस की थी। वैदिक साइंस में मेडिकल साइंस भी है, जो हम आज बोलते हैं ना आयुर्वेद तो मेडिकल साइंस है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आर्किटेक्चर, सब कुछ है उसमें। वेद मतलब ज्ञान। जो विद्या की देवता हम मानते हैं, विद्या की देवता सरस्वती, शारदा माँ, उनके हाथ में जो बुक्स है वो वेद है। वेद मतलब किसी धर्म का बात नहीं है, वेद मतलब ज्ञान, जो सबके लिए है, पूरा दुनिया के लिए है। लेकिन जिनको ज्ञान नहीं है वो समझते हैं ओ हम वेद नहीं मानते हैं, वो तो पागल ही होगा, क्योंकि वेद मतलब ज्ञान। अभी जब कहा गया आयुर्वेद, क्या कहा गया? आयुर्वेद, कि वो मेडिकल साइंस है, वो कहाँ धर्म की बात आ गई, वहाँ पे जाति की बात आ गई। ये तो पागल ही होता है जो बोल देगा ये तो इनका किताब है, ये तो उनका किताब है। जैसे फिजिक्स मैथ्स जो होता है वो कोई जाति धर्म का नहीं होता है, वो सबके लिए होता है। लेकिन ये अज्ञान होता है, लोग सोचते हैं ये किताबें उनकी हैं, ये किताबें इनकी हैं। लेकिन नवोदय अपना ऐसा एक विशेष स्थान है जहाँ हम बोलते हैं रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो, संताने धरती माँ के हम धरती पूजा स्थान हो। बहुत जगह ऐसी समस्या हुई है कि लोग जब भगवान को नहीं जानते, भगवान को नहीं मानते, उनको भगवान से एलर्जी होती है। हमने जब 30 साल पहले 32 साल पहले जब नवोदय में प्रवेश किया था तो मूल शब्द यही है, रंग जाति पद भेद रहित हम सबका एक भगवान हो। यही मूल शब्द है वो गीत में, नवोदय प्रवेश में। लेकिन कुछ लोगों को एलर्जी होती है भगवान से, हमें भगवान नहीं चाहिए, तो विश्वास डाल दिया उसमें। जो विश्वास कभी सबका एक नहीं हो सकता, लेकिन भगवान सबका एक हो सकता है, क्योंकि भगवान सबके पिता है। विश्वास सबका अलग अलग हो सकता है, होता ही है। लोग बोलती है आई डोंट बिलीव इन दिस, आई डोंट बिलीव इन दैट, ऐसे बोलते ही है। लेकिन सबका एक, जैसे धरती माता सबकी एक ही है, भूमि सबकी माँ एक ही है, वैसे यदि धरती अपनी माता है तो माता तो अकेले नहीं होती है, पिता भी चाहिए। बिना पिता की माता कैसे हो गई कोई? तो पिता कौन हो सकते? भूमि के साथ, भूमि के साथ पिता, वो जो सर्वशक्तिमान कोई है वो भगवान ही हो सकते हैं। लोग हम जानते नहीं हैं कि भगवान 2 नहीं 4 नहीं, भगवान एक ही है। जो कोई बोलते थे सबका मालिक एक ही है, जो दुनिया बनाने वाला है, दुनिया चलाने वाला है। बच्चों, अंतिम बात मैं यही बोलूँगा कि हमें इतना समझना चाहिए कॉमन सेंस से, भगवान कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो मानेंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे हम उसके ही हैं। हम जो कुछ भी है, जीव आत्मा,
वो भगवान का ही अंश है, हम उसके ही है। अपना अस्तित्व, जैसे अपना बॉडी, जीवन बॉडी जो मिला है माता पिता ने दिया है, अपने माता पिता को नहीं मानेंगे, नहीं जानेंगे तो अपनी पहचान क्या होगी। वैसे ही हम जो जीव है, आत्मा, वो जिसका अंश है भगवान का, हम इसको ही नहीं मानेंगे, उसको ही नहीं जानेंगे, हम सोचेंगे हम कुछ बॉडी बस, तो हम तो बड़े अभागी होंगे बिना भगवान के। भगवान अपना माता पिता सब कुछ है, जो प्रेयर के विनोदन में गाते हैं, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, आगे बोलते हैं तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। इन शब्दों पे ध्यान देंगे, अंतिम 2 मिनट है, इन शब्दों पे ध्यान देंगे, हमें समझ में आता है कि भगवान कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो हमें ऐसा दंड देगा। वो अपना माता पिता बंधु सखा साथी सहारा सब कुछ है, अपने सुख के लिए है, और वो हम सबके साथ भी है। भगवान के सामने कोई भेदभाव नहीं होता है। भगवान के लिए पशु पंछी सभी जीव उनकी संतान हैं। इसलिए अपनी जो सभ्यता है, अपनी संस्कृति है देश का, इतना महान है। वो तो बोलता है वसुदैव कुटुंबकम, जहाँ भेदभाव नहीं है, पूरे विश्व को, पूरी पृथ्वी को हम अपना परिवार मानते हैं। और इसी के आधार पर हम जो प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम सब भारतवासी कौन हैं, भाई बहन हैं। ये प्रतिज्ञा का आधार क्या है, ये कल्चर, ये ज्ञान कि हम सबका एक भगवान है जो दयालु है, प्रेम का सागर है। बच्चों, यदि हम भगवान को नहीं मानेंगे, अपने माता पिता को नहीं मानेंगे, तो हमें कहाँ से सुख मिलने वाला है, और कहाँ से हम खुद को भी जान पाएंगे। देखिए, अंतिम 1 मिनट बोलता हूँ। जैसे हम समझते हैं कि जो लोग नहीं बोलते, जो लोग बोलते हैं भगवान कुछ नहीं होता है, तो उसका परिणाम क्या होता है, वो लोग स्वयं को भी नहीं मानते हैं, ना जानते हैं। कैसे जानते नहीं हैं, वो बोलते ही है आत्मा कुछ नहीं होती है कौन स्वयं, एक जीव, एक आत्मा जो हमेशा जीना चाहता है, जो बुरा बनना नहीं चाहता, जो हमेशा सुख चाहता है। क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है, सच्चित आनंद, सच्चिदानंद। क्या है स्वभाव आत्मा का, सच्चित, सत मतलब जो बदलता नहीं है, परमानेंट, शाश्वत, सनातन, सत। चित चिन्मय, आत्मा ज्ञानमय है, चिन्मय दिव्य है, और आत्मा आनंदमय है, क्योंकि ये गुण भगवान का ही है। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, सच्चित आनंद, न बदलने वाला, सत, चिन्मय और ज्ञानमय, आनंदमय। तो लोग जो बोलते हैं कि आत्मा कुछ नहीं है, मतलब वो स्वयं को भी खो दिया है, बस बॉडी के लिए जीता है। पशु जैसे पशु केवल कुत्ता गधा जो होता है केवल शरीर के लिए जीता है, वो स्वयं को जानता नहीं कि मैं एक जीव हूँ, आत्मा हूँ, जो भगवान के धाम से आए हैं। आपने जो प्रेयर से पहले गाया, ओम असतो मां, गाया था आपने, सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा, ये भी वेदों के वाक्य हैं। IIT के लोगों में 3 शब्द है, योगः कर्मसु कौशलम। क्या है योगः कर्मसु, कि सभी कर्मों में सबसे बड़ा कुशलता, स्किल योग है, मतलब भगवान से जुड़ना, अपने माता पिता से जुड़ना। जब तक माता पिता से जुड़ेंगे नहीं, बात माता पिता को मानेंगे नहीं, तो माता पिता से जो कुछ चाहिए आपको वो कैसे मिलेगा। इतनी शक्ति हमें देन दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। ये बोलते हैं ना प्रेयर, दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दें भली जिंदगी। ये जो प्रेयर के शब्द हैं, फिर ये सार्थक कैसे होंगे यदि हम भगवान को नहीं मानेंगे। हमें जो शक्ति बुद्धि चाहिए वो कैसे ले पाएंगे, हम नहीं मानते भगवान को, तो फिर प्रेयर क्यों बोलते हो। पूरी दुनिया में लोग प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर बोलते हैं, और प्रेयर से सिद्ध होता है। प्रेयर किसको बोलेंगे, PM CM को बोलेंगे, नहीं, भगवान को ही बोल सकते हैं, जो कोई है शक्तिमान जो। और ये भगवान, अंतिम बात ये बोलूँगा, ये भगवान अपने साथ भी है, आत्मा के साथ, उसे बोलते हैं परमात्मा। बच्चों, यदि इतना विश्वास हो जाए, हमें श्रद्धा हो, हम अकेले नहीं हैं, हम भगवान के हैं, भगवान अपने साथ है, ना हमें भय होगा ना चिंता होगी। जैसे बच्चों को यदि माता पिता बाजू में हैं, चिंता नहीं होती है,
छोटा बालक 2 साल का बच्चा है, माँ की गोद में है, वो बिंदास होता है, निश्चिंत होता है, क्यों? माँ है बाजू में, माँ साथ में है। वैसे ही जब हम जानेंगे दुनिया के स्वामी जो कोई है, जगन्नाथ जो है, वो अपने साथ है, तो हमें चिंता की कोई बात नहीं होगी, कोई भय नहीं होगा। जब भगवान की इच्छा से दुनिया चलती है और वो अपने साथ है, वो अपना है, तो ना भय होगा ना कोई चिंता होगी। बच्चों, ये बस इतना समझने से, जीवन का ज्ञान, अपनी पहचान समझने से, सभी जीवन मूल्य जैसे सेवा का भाव या दूसरों के लिए सम्मान, जो कृतज्ञ भाव, बीइंग ग्रेटफुल, कृतज्ञ भाव, नम्रता, स्वच्छता, प्रामाणिकता, ये सभी गुण मूल्य हमें आ जाएंगे। जैसे हम बोलते हैं ना भाई बहन, हम सब भाई बहन हैं, लोग मानते नहीं भाई बहन हैं, क्योंकि ज्ञान जानते हैं कि अपना सबका एक माता पिता है। माता पिता को, एक माता पिता को नहीं मानेंगे तो भाई बहन कैसे बनेंगे हम? सिंपल बात है। बंधु भाव कैसे आएगा? बस बोलने से आ जाएगा? नहीं आएगा बोलने से। जानना पड़ेगा कि हम सबका माता पिता एक ही है, तब बंधु भाव केवल मनुष्य का नहीं, जैसे संत तुकाराम महाराज बोलते हैं, सभी जीवों के प्रति आ जाएगा बंधु भाव। वृक्षवल्ली आमा सोए रे वनचरे पक्षी सुरयाड़वती। कि तुकाराम संत महात्मा जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, जो जानते हैं, ज्ञानी, वो तो सभी जीवों को, पशु पंछी पेड़ पौधों सभी को अपना मानते हैं। क्यों? वो सबके अंदर आत्मा देखते हैं, जबकि बॉडी अलग अलग है, लेकिन आत्मा को देखते हैं जो सबका एक जैसा ही है। बच्चों, थैंक यू, आपने बहुत ध्यान से सुना, और I wish you all the best. May God bless you. I thank all our teachers to give me this opportunity to serve here. मैं आज एक दिन आपके कैंपस में हूँ। किसी को कुछ मुझसे पूछना है, कुछ बताना है, कुछ डाउट्स है, कोई समस्या है, तो मैं आपकी सेवा करना चाहूँगा यहाँ पे एक दिन। आपको अच्छा लगा? कुछ पॉइंट समझ में आया? कुछ बच्चों को समझ में आया? कुछ यहाँ पे लड़कों को? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you so much, sir, for addressing the students about spirituality and importance of the different aspects in the life. Well, Thank you. मौसम एकदम प्लीज